हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है लक्ष्य डिजिटल क्लास में। और आज हम जानेंगे कि अंग्रेजी ग्रामर में डू, डज और डीड का प्रयोग कैसे होता। हाउ डू, डज एंड डीड they are used in English grammar. As you know that there are two types of verbs. There are two types of verbs. What are they? First one is main verb. First one is main verb, and the second one is helping verbs. Second one is helping verb. As I told you, as there is given on the digital board, there are two types of verbs, main verb and second one is helping verbs. Helping verbs. Now, you also know it very well that there are 24 helping verbs. There are 24 helping verbs. What are they? They are is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, shall। अब उधर जो भी हो, यहाँ पर डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब है। You can see it very well in the section of helping verbs. Do, does, did, they are helping verbs. And what are their roles in English grammar or in English writing or in the field of English? We are going to know all the things by and by, one by one. हम लोग एक एक करके जानेंगे कि उसका प्रयोग क्या है, कैसे किया जाता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। Look at here. As I told you, there are two verbs, main verbs and helping verbs. And in helping verbs, there are three helping verbs. They are do, does and did. Now we are going to know how we are going to use those do, does, did in our written form. First of all, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। In emphatic sentence, do you know what is emphatic sentence? Emphatic means to give stress to your sentence. हाँ हाँ उसने ही किया है means giving stress to your statement, already given there. Sometimes do, does and did are used in positive sentences to special emphasis that what you say is true despite what the other person thinks. Means जो आपने बातें कही वही बात सही है और जो दूसरे व्यक्ति इस समय बोल रहे हैं वो गलत है। That is called emphasis, अर्थात गिविंग स्ट्रेस। इट इज कॉल्ड बलाघात इन हिंदी। बात को ठोस ढंग से रखना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑन द डिजिटल बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू रियली वांट टू गो। द सेकेंड वन इज सीता डज प्ले टेनिस। द थर्ड वन इज ही डिड राइट अ लेटर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ emphatic sentences. I do really want to go. Number two, Sita does play tennis. He did write a letter. These are the usage of do, does, did. Do, does, did. They have been given here to make the sentences emphatic. Okay, I am giving you some more examples regarding emphatic sentences. Supposing they do want to join the army. They do want to
join the army. Number 2, we do like coffee. We do like coffee. Here in these two sentences we can see that do. Two do's have been used to make the sentences emphatic. Okay, another examples. Number 2, Rekha does wash the plates. Rekha does wash the plates. My mom does help me. My mom does help me. Here in these two sentences, you see that how does are given in the sentences, and they show that the sentences are emphatic sentences. Now come to the did part. They did play in the evening. We did help the boy. Remember one thing, when we are using did, do or does, the main verb must be in its real form. So the first use of do, does, did is making the sentence emphatic. Do, does, did का पहला प्रयोग क्या है कि वाक्यों को emphatic बनाना. Okay, now we are going ahead. चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका अगला प्रयोग कहां पर होता है. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स डू, डज और डिड का प्रयोग निगेटिव वाले वाक्यों में भी होता है. एक नए बात का पता चला है. चलो देखते हैं कि कैसे डू, डज और डिड का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंसेस में होता है. कैसे हम लोग इसको जानेंगे उदाहरण के माध्यम से. इट is also common to use do, does and did to create negative sentences. It means in framing negative sentences, do, does and did, they play an important role. Means with the help of do, does and did, we can write negative sentences. Okay, how we are going to write negative sentences? Just there are some examples, and I think these examples will help us a lot in making the idea clear. चलिए हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से कि कैसे do, does और did की मदद से वाक्य को निगेटिव बनाया जा सकता है. I do not like tea. Do not, do के साथ नोट का इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पर डू के साथ डू प्लस नोट का इस्तेमाल किया गया है. दोनों मिलके क्या बना है? डोंट बना है. ओके, इन नंबर 2, मोती डजंट प्ले हॉकी. डजंट कैसे बना है? डज के साथ में नोट का प्रयोग हुआ है और ये बना है डजंट. ये बन गया डजंट. उसके बाद मोही डिडंट गो देयर. यहाँ पर है डिड नोट. डिड कैसे हम लोगों ने बनाया है? डिड प्लस नोट और ये बन गया डिड नोट. तो डू, डिड और डज के साथ यदि नोट लगा दिया जाए और वो भी कब? मेन वर्ब से पहले यदि डू, डज और डिड के साथ नोट लगा दिया जाए तो बन जाता है निगेटिव sentence. Okay, now I am going to give you some more examples so that I could
मेक द आइडिया क्लियर फॉर यू। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जिसकी मदद से हम लोग जान सकेंगे कि कैसे निगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर a minute I told you that do plus not don't, does plus not doesn't, did plus not didn't. Using the same formula we can make sentences negative. Some examples are given there. The cat the cat doesn't drink milk. The cat doesn't drink milk. This is a negative sentence. Mr. X and Mr. X and Mr. Y do not play well. Mr. X and Mr. Y do not play well. Here in this example you can see there is the use of don't, means do not. Another example, the players didn't help the old man. The players didn't help the old man. Here there is the use of didn't. It means we can use do not, did not, does not to frame sentences negative. And remember one thing, while you are using do not, did not, doesn't, they must be used before the main verbs. As here in this example, help is the main verb. Similarly in this sentence, like is the main verb, play is the main verb, go is the main verb. So do not, does not and didn't, they must be used before the main verbs. Okay, चलिए हम लोग देखते हैं कि और क्या है। डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट का प्रयोग और कहाँ पर होता है, डू डज डिड का प्रयोग और कहाँ होता है। हमने अभी तक देखा है, क्या क्या देखा है, इसका प्रयोग एम्फैटिक सेंटेंस में होता है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। चलिए देखते हैं और कहाँ पर इसके इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। ओके, you can see on the digital board, you can see that interrogative sentences. In interrogative sentences we can use once again do, does and did. In interrogative sentences we can use do, does, did. तो प्रश्नवाचक वाक्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। What is there on the digital board? डिजिटल बोर्ड में जरा देखें क्या दिया है। Do, does, did are also used to frame interrogative sentences. It means with the help of do, does and did we can frame interrogative sentences. हम लोग इसकी मदद से प्रश्नवाचक वाक्य भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एम्फैटिक सेंटेंस बनाए थे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे। अब हम इनकी मदद से हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य भी बना सकते हैं। कैसे? जरा से हम इन उदाहरणों को देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? Do is kept at the beginning of the sentence. Does she cook well? Does has been used at the beginning of the sentence. Did they clean the room? Did has been kept at the beginning of the sentence. So placing do, does and did at the beginning of the sentences
we can frame interrogative sentences. One thing. Second thing is that whenever you are using these words, जब आप do, does, did का इस्तेमाल प्रश्न बनाने में कर रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में कर रहे हैं, तो जो क्रिया है वह अपने मूल रूप में रहेगा। क्रिया जो है अपने मूल रूप में रहेगा। ऐसा नहीं कि did का मतलब होता है पास्ट टेंस, यहाँ पास्ट टेंस है तो आप यहाँ भी पास्ट टेंस लगा दो। डज का मतलब पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी आप यस यस लगा दो, ऐसा नहीं है। यदि आप डू, डज, डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में, तो अपने मूल रूप में रहेगा। चलिए हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं और ज़्यादा बेहतर जानने की कोशिश करते हैं। Do the girls come here? Do the girls come here? Question mark. Then do the girls come here? Then does the dog run fast? Does the dog run fast? And the final one is, did we go there? Look, in all these sentences verbs have been given in their real form. आपने सभी वाक्यों में देखा कि जो क्रिया है वर्ब है वह अपने मूल रूप में है। फिर से एक बार हम लोग दोहराते हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या जाना है। डू, डज और डिड का इस्तेमाल कहाँ होता है? पहले एम्फैटिक सेंटेंस में, दूसरा निगेटिव सेंटेंस में, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद डू, डज, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है, उसका प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। इन क्वेश्चन टैग ये तो बहुत ही जरूरी है 10वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर हम एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। हम डू, डज, डिड के बारे में भी जान ले रहे हैं और क्वेश्चन टैग के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है। आई लव माई इंडिया। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं डू, डज, डिड आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स टू टैग क्वेश्चंस if there are only main verbs in the sentences. What is there? Give your all attention. पूरा ध्यान दीजिए। बोल रहा है वाक्य में कि यदि अन्य दूसरा हेल्पिंग वर्ब ना हो, जैसे is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, may, can, would, should, could, must, need, dare, used to, ought to, have to, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है यदि ना हो तो हम लोग मेन वर्ब्स में देखेंगे। ओके, we will look at the main verbs. We will look at the main verbs and हम लोग main verb में देखेंगे। main verb है love, main verb है please, main verb है saw। इससे पता चल जाता है कि हमको do, does और did का इस्तेमाल करना है। I love my India, don't I? The sentence is in simple present tense, that's why don't I? Sanjay plays cricket, doesn't he? We saw a fox, didn't we? You can see, do, does, did. These helping verbs have been used to frame question tags. क्वेश्चन टैग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वेश्चन टैग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए एक दो उदाहरण और देखते हैं ताकि बात को हम लोग और अच्छी तरीक़ा से समझ सकें। Yes, the rat runs fast. The rat runs fast. There is not a helping verb in the sentence. That's why यहाँ पर helping verb नहीं है तो हम लोग इसको बनाएंगे doesn't eat. Doesn't eat. उसी तरह से children love playing.
चिल्ड्रंस लव प्लेइंग। इसका उत्तर कैसे बनेगा? डोंट दे। ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर हियर आई एम नॉट गोइंग टू टेल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ क्वेश्चन टैग्स। यहाँ पर अभी आपको ये नहीं बताया जा रहा कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डू डज डिड का इस्तेमाल क्वेश्चन टैग में भी होता है। That's why in the first example you can see the rat runs fast. The answer would be doesn't it. The second one is children love playing, don't they. And the final one is they theft, या इसको ऐसे कर सकते हैं, they stole my pen, didn't they. So the fourth one is using do does did in question tags. So once again we are going for recapitulation. As I told you that do does did, they are helping verbs, and we can use these helping verbs in 4 areas. As I told you, the first one is to frame negative sentences, the second one is to frame interrogative sentences, the third one is for question tags. तो क्वेश्चन टैग में है नेगेटिव बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर एम्फैटिक बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, इंटरोगेटिव बनाने में इस्तेमाल होता है। चलिए इसके बाद कुछ और आगे इसके बारे में जानते हैं। As I told you, there are 4 usage at least, और भी कुछ अपवाद है, लेकिन हाल फिलहाल हम लोग उन अपवादों में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको तैयारी करनी है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। As I told you, जैसे मैंने बताया कि do does did, they are helping verbs, and they can be used in negative sentences, they can be used in interrogative sentences, in emphatic sentences, for question tags. Now I told you a lot regarding all these sentences. इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए देखते हैं एक बार इसका प्रैक्टिस कैसे किया जाए, कैसे हम लोग जानेंगे कि हमारी समझ कहाँ तक बनी है। Do as directed. Practice. Change into negative sentences. Negative sentences में मैंने बताया था कैसे बनाया जाता है। विनोद सिंग्स वेल, विनोद सिंग्स वेल, विनोद सिंग्स वेल। इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। विनोद डजंट, विनोद डजंट सिंग वेल, विनोद डजंट सिंग वेल। देन चिल्ड्रेन बॉट 2 बुक्स, चिल्ड्रेन बॉट 2 बुक्स। इसको कैसे करेंगे, इसको किस ढंग से बनाएंगे? तो रिमेंबर, व्हेन वी आर यूजिंग डू डज डिड, अवर ऑल अटेंशन मस्ट बी इन द मैन वर्ब्स। हमारा पूरा ध्यान मैन वर्ब में होना चाहिए। यदि हमने उसको पकड़ लिया और डू डज डिड और मैन वर्ब के बीच में यदि तालमेल बैठा लिया तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। यू सी दैट देयर इज यस, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड डजंट। You see here bought means the word is in past tense, that's why our answer would be children bought 2 books, children didn't buy 2 books, children didn't buy 2 books। यहाँ पर हमारा वाक्य है यू राइट अ लेटर एवरी डे, यू राइट अ लेटर एवरी डे। इसको हम लोग कैसे सुधारें, कैसे बनाएंगे? यू डू नॉट राइट अ लेटर एवरी डे, यू डू नॉट राइट अ लेटर एवरी डे, लेटर एवरी डे। दैट्स इनफ। यही आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है।
सिर्फ और सिर्फ जब आप डू डज डिड से कोई भी को लेकर कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहे निगेटिव बनाना चाहते हो, इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो, एम्फैटिक बनाना चाहते हो या फिर क्वेश्चन टैग लगाना चाहते हो, सबसे पहला जो चीज़ है वह आपको मेन वर्ब पर पूरा नज़र बनाकर रखना है। एंड ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। Until or unless you are not giving your all attention to the main verbs, यदि आप main verbs पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका उत्तर कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। तो बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही आहिस्ता के साथ, वैसे अंग्रेजी का पेपर में एक बात तो ये है कि गणित के मुकाबले, हिंदी के मुकाबले, सामाजिक विज्ञान के मुकाबले इसमें बहुत समय रहता है, क्योंकि प्रश्नों का जो उत्तर रहता है 2 लाइन 3 लाइन ऐसा रहता है, बहुत समय रहता है। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आंसर को देने की कोशिश कीजिए। हड़बड़ी की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। यस, नाउ द सेकेंड वन इज चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया कि देयर आर 4 एरियाज ऑन वी आर गोइंग टू फोकस। 4 चीज़ों पर हमने फोकस किया। व्हाट आर दे? फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस, देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, देन एम्फैटिक सेंटेंसेस, देन क्वेश्चन टैग्स। 4 चीज़ों पर हमने अभी फोकस किया। कुछ कहीं कहीं पर और इसका उपयोग होता है, लेकिन हम लोगों को अभी उलझना नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करना है। चलिए देखते हैं कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव sentences. As I told you that once again you are going to give your all attention to the main verbs. फिर से बताना चाहूँगा कि आपको main verbs पर ध्यान रखना है। चलिए